These rockets are typically staged rockets. Each stage carries its own weight, its own mass, and its structural hardware. They have got their own ignition system, combustion chambers, and every stage has different thrust. The poised rocket here looks like 30-meter long rocket. It's a 4-stage solid propellant rocket. The thrust of the first stage, we always see the ignition and smoke coming out. That is the thrust the first stage of the rocket is going to deliver. That is the maximum thrust of any rocket. It should overcome the weight of the vehicle itself and the payload it is carrying. In our case, the thrust is like more than 200 newtons. जहां से ये लॉन्च होती है, जिस तरीके से एयरफोर्स की बेस होती है, तो इसको भी हम बेस ही कहते हैं वहां पे ना, क्योंकि इसके भी सराउंडिंग में हमें काफी एरिया खाली चाहिए होता है. जो बड़े सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं उसमें इवन कि हमें जो ना बूस्टर्स भी नजर आते हैं साइड में, जो ना फर्स्ट स्टेज के अराउंड. ये क्योंकि छोटे सैटेलाइट्स हैं तो इसमें बूस्टर्स वगैरह आपको नहीं दिखाई देते हैं. इसका एक एरियल व्यू है. ये लॉन्च साइड पे जैसे आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल ही खाली एरिया होता है सारा. Five minutes to launch. ये हमारी सीनियर मैनेजमेंट. ये अभी जैसे क्लैंप हमारे जो है वो लॉन्चर से जो है वो सेपरेट हो रहे हैं. 各号注意，我是0号。各号注意，我是0号。3分钟准备。 3 minutes to launch.
پاکستان خلائی ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ کراچی، اسپارکو اور اسلام آباد اسپارکو ہیڈ کوارٹرز میں سیٹلائٹ لانچنگ کی تقریب جاری ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اقصیٰ شاہد۔ اقصیٰ، بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ جو سیٹلائٹ ہے مددگار ثابت ہوگا؟ بالکل، پاکستان کے پہلے ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 کی لانچنگ کی تقریب جو ہے کراچی کمپلیکس اسپارکو کے اندر جاری ہے، اور ابھی جو ہے صرف 2 سے 1.5 منٹ رہ گئے ہیں اس کو لانچنگ کے لیے۔ پھر پاکستان خلائی ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل ہو جائے گا۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ زمین، سطح، پانی، شہری علاقوں کا تفصیلی جو ہے وہ تجزیہ بھی کرے گا، جبکہ جدید سیٹلائٹ سیکٹر نوری بینڈز میں درست تصویر حاصل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جس میں بھی یہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے یا پھر جو گلیشیئرز پگھلنے کی بھی مانیٹرنگ کرے گا، جنگلات کی کٹائی اور آلودگی اور گلیشیئرز پگھلنے کی بھی، اور اس کے علاوہ جو سی پیک منصوبوں میں جغرافیائی خطرات کی نشاندہی ہے اس کی بھی یہ مانیٹرنگ کرے گا۔ اب یہاں پر جو ہے کمپلیکس کے اندر کاؤنٹنگ اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور صرف جو ہے 1 سے 1.5 منٹ باقی رہ گیا ہے اس کی لانچنگ کے لیے، اور جیسے یہ لانچ ہوگا چین کے جو سیٹلائٹ اسٹیشن ہے وہاں سے یہ لانچ کیا جا رہا ہے، اور اب 50 سیکنڈ رہ گئے ہیں یہ اس کی لانچنگ کے لیے۔ جی اچھا اقصیٰ، یہ بتائے گا یہ جو اسپیکٹر ہے اس کی اسپیسیفیکیشنز کیا ہوں گی؟ اقصیٰ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، اپڈیٹ کریں آپ کو۔ سیٹلائٹ HS-1 چین سے خلا میں روانہ کیا جائے گا۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سیلابوں، لینڈ سلائڈز اور قدرتی آفات کی پیشگوئی میں مدد فراہم کرے گا۔ سال 2025 میں خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہوگا۔ 8 7 6 5 4 3 2 1 Lift off. 5, 4, mission. Lift off. You can see the spectacle right through the skies of China Country Province. Radar tracking normal. 酒泉遥测信号正常。 Jiuquan tracking 双整 normal. 光学雷达酒泉遥测信号正常。遥测信号正常。双整光学雷达跟踪正常，遥测信号正常。东风飞行正常，东风光学雷达跟踪正常，遥测信号正常，东风飞行正常。酒泉1、2级分离。酒泉1、2级分离。 127 tracking station. جیسا سر بتا رہے ہیں مختلف اسٹیشن سے اس کی ٹریکنگ ہو رہی ہے، جو کہ ابھی تک نارمل ہے، سکسیسفل ہے۔ Satellite is approaching towards its target orbit. Feeling the Earth's atmospheric drag, thick atmosphere. It's a beautiful sight. थोड़ी देर में जब हद नजर से ये सैटेलाइट दूर हो जाएगा तो हम रियल टाइम सिमुलेशन मोड में एंटर हो जाएंगे। Leadership seems very happy.
5圈23级分离。 237 ट्रैकिंग स्टेशन। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो गया है। HS1 हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से फसलों, मिट्टी, पानी के मयार की दुरुस्त निगरानी की जा सकेगी। स्पार्को मुल्क की समाजी और इक्तसादी तरक्की में अपना किरदार मज़ीद मुस्तहकम कर रहा है। पाकिस्तान ने पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में भेज दिया। इसी पर तफसीलात हासिल कर लेंगे। तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बताएगा, पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में भेज दिया गया है, किन किन सेक्टर्स में ये हेल्पफुल साबित होगा? जी, पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है कि इस साल पाकिस्तान ने अपना जो तीसरा सैटेलाइट है वो खला में भेजा है। जबकि इसकी अगर हम मजमूई तौर पर बात करते हैं तो जो HS1 स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है ये पहला सैटेलाइट है जो कि पाकिस्तान ने लॉन्च किया है और इसके लॉन्च से पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो चुका है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जमीन, सब्जे, पानी, शहरी इलाकों का तफसीली तजज़िया कर सकेगा। जदीद सैटेलाइट सैकड़ों नूरी बैंड्स में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से ज़रूरी मनसूबा बंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब की तवक्को है और चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान ने भी इस हवाले से अपना पैगाम दिया है। उनका कहना था कि ये जो सैटेलाइट है पाकिस्तान और चीन के खलाई तावन का नया बाब जो है वो रकम करने जा रहा है। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी में खुद नसारी की जानिब मजबूत कदम है। स्पार्को मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है। उनके साथ में ये कहना था कि ये जो सैटेलाइट है आज ही अपने मखसूस मदार में दाखिल हो जाएगा और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ये कामयाबी से मदार के अंदर दाखिल हो जाएगा। और इस साल ये तीसरा सैटेलाइट है जो भेजा जा रहा है खला के अंदर और सैटेलाइट में ये मदार अपने टेस्टिंग को 2 माह में मुकम्मल करेगा, जिसके बाद ये सैटेलाइट मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा और स्पार्को इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकेगा और इसे तमाम तर तफसीलात हासिल करके पाकिस्तान में ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी आबादी जो दीगर मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से प्लान कर सकेगा। जी अच्छा तैयब, ये भी बताएगा कि जिस तरह से इसका नाम भी मेंशन है, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट 1 का नाम इसको दिया गया है, इससे पहले भी पाकिस्तान ने खला में भेजे हैं सैटेलाइट और ये तीसरा होगा इस साल का। इसकी क्या ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं जो इसको पिछले सैटेलाइट से मुख्तलिफ बनाती हैं? जी, क्योंकि खासतौर पे पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से काफ़ी जो है मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से जो हमारे पहले वाले सैटेलाइट्स हैं वो मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ एरियाज के अंदर अपनी जो तमाम तर फंक्शंस हैं उसको पाल करके अपनी जो रिपोर्ट है वो पाकिस्तान को भिजवाते हैं। लेकिन ये जो नया सैटेलाइट गया है इससे एक तो पाकिस्तान का एरिया जो है वो मजीद बढ़ जाएगा और इसके साथ ही जो एक नैरो टाइप की जो तस्वीर है या इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान बेहतर तरीके से हासिल कर सकेगा। अगर खुदा न खासा किसी जगह पे कोई क्लाइमेट चेंज से कोई तबाही आती है या किसी जगह पे हमने फसलों का हमने मुआयना करना है और वहाँ पर हमने चेक करना है कि किस जगह पे कितनी फसलें जो है वो लगाई गई हैं और कौन सी क्रॉप ज्यादा है, और उन तमाम तो चीज़ों के हवाले से हम बेहतर तरीके से जो निगरानी है और निगहदाश्त जो है वो कर सकेंगे। मौसम की जो हमारी एक्यूरेसी है बताने की वो बेहतर हो जाएगी, जिसके बाद हम अपने किसानों को बाखबर रख सकेंगे और किसान उस हवाले से मनसूबाबंदी कर सकेंगे, जिसके बायस हमारी जो फसलों की पैदावार है वो 20 से 25% मजीद बढ़ जाएगी, जिससे किसान भी खुशहाल होगा और पाकिस्तान में अपनी जो ज़रिए जनाज है उसमें पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा। इसी तरह जो माहौलियाती तब्दीली के एरियाज हैं वहाँ पर हम अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत तमाम तक चीज़ों को हम गाइड कर सकेंगे और वहाँ की जो इलाका मकीन है उनको बता सकेंगे कि आपके इलाके में कौन सी तबाही आ सकती है या कौन सा जो मसला है वो आने वाले दिनों में दरपेश हो सकता है, जिससे इंसानी जानें भी बचाई जा सकेंगी और जो लोगों की अमलाक है उसको भी उससे भी फायदा उठाया जा सकेगा। और इससे सूरत हाल ये है कि इस स्पार्को के जो इस्लामाबाद में स्पेस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है यहाँ पर ये तमाम तर मनाजर दिखाए गए थे कि यहाँ से जो हमारा HS1 स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, शुक्रिया तैयब तफसीलन अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान अपना पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में भेज दिया है।